ہم اس کا نام بھی لے لیا آپ کے سامنے، وہ آ بھی گیا ہے، وہ اس کے باوجود ہمیں ادھر رکھا ہوا ہے۔ بھیگنا ہے سر جی، سانو تے وزات تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی لوکیشن یہاں سے تبدیل کر کے دیپال پور کے علاقے میں چلے گئے۔ تو گور کو ہم نے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ لڑکی کو بھی پوری سزا دلوائیں گے اور اس کو اس مقدمے میں اریسٹ کروں گا۔ نکے نکے میرے بچے نے، میں اپنے بچے APNN کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ محبوبہ کو چھیڑنے پر عاشق نے رقیب کو قتل کر دیا۔ وفا بی بی کو چھیڑنے پر گوہر نے وقار کو قتل کر دیا۔ قتل کی اس منفرد کہانی کے ساتھ میں ہوں ذیشان علی چشتی اور میں اس وقت موجود ہوں تھانہ سندر میں، جہاں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ملزمان کے ساتھ۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ جی میرے ساتھ اس وقت اس کیس کے ملزم موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا، کس طرح سے قتل کیا ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ یہ آفاق نامی لڑکا ہے، ہمارے گلی میں رہتا ہے، 4-5 گھر چھوڑ کر۔ یہ نا روز ہی نا ہمارے گھر کے آگے میوزک لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اسے کئی دفعہ سمجھایا اور یہ نا باز نہیں آتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے بھی اس کو سمجھایا یہ، لیکن پھر بھی نا یہ باز آیا۔ تو پھر ایک دن پھر میں یہ کھڑا ہوا تھا، میری والدہ گئی ان کے گھر کو سمجھانے کے لیے، ان کی والدہ کو۔ وہ کہتا آگے سے ایسا نہیں ہوگا، ان کی والدہ کہتی۔ پھر وہ آ گئے، پھر وہ یہ ہوا کہ آگے والے دن پھر یہ کھڑا ہوا تھا میوزک لگا کر۔ میں نے اسے کہا بھائی آپ ادھر کھڑے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں ہمارے گھر کے آگے میوزک لگا کے 2-2:30 بجے؟ ساری فیملی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، یہ کہتا آپ کی پرابلم ہے نا، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اتنے میں یہ میرا بھائی بھی آ گیا اندر سے اور اس کا بھائی بھی آ گیا۔ وہ کہتا میں اسے سمجھاتا ہوں، چلے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ پھر ہم اندر گئے چلے۔ آگے والے دن اس نے نا میری بہن کو نا تنگ کیا۔ اس سے اگلے دن ہی اس نے بہن کو تنگ کیا؟ جی آگے والے دن اس نے نا میری بہن کو بہت تنگ کیا، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر وہ رات کا ٹائم تھا، یہ 2-2:30 بجے کا، اور یہ پھر میوزک لگا کے کھڑا ہوا تھا۔ اور میری ہمشیرہ نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا تھا اس بات کا۔ اچھا، یہ جو گوہر ہے یہ اس کا ہسبینڈ ہے؟ جی یہ گوہر اس کا ہسبینڈ ہے، اس کو بتا دیا تھا۔ پھر یہ گوہر بات کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور وہ گاڑی لے کے کھڑا ہوا تھا۔ اس کو سمجھایا آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ کہتا اچھا، ہمشیرہ نے یہ گوہر کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی؟ جی پسند کی، نکاح ہوا تھا۔ اچھا، اور اس کو کہا یہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ کہتا میرا گھر ادھر ہے۔ وہ اس نے جا کر نا بیل دی، اتنے میں اس کے بھائی بھی آ گئے۔ ادھر میں پھر جھگڑا ہو گیا، مطلب لڑائی ہوگی، مطلب دونوں کی طرف سے فائرنگ ہوئی۔ تو پھر وہ نا گھر آ گیا۔ آ کے نا پھر ٹیرس میں نا اس نے نا دو ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی، 2-3 ٹیرس میں بھی نا فائر کیے ہوائی۔ اتنے میں میں ڈر گیا، میں نے نا 15 پہ کال کی اور بیریا ہیڈ کوارٹر پہ کال کی، کر کے بعد فائرنگ ہو رہی ہے۔ وہ گوہر میرا بنوائی آیا، اتنے میں وہ اس نے بائک سٹارٹ کی، چابی پکڑی، بائک سٹارٹ کی اور بھاگ رہا تھا، جس میں نا وہ اس کا وہ جو پرس وغیرہ ہوتا ہے نا، جس میں پسٹل وغیرہ ہوتا ہے، ID کارڈ اور ATM کارڈ اور وغیرہ کوئی کاغذات تھے، وہ گر گئے۔ اس کے بعد گر گئے تھے اس کے کارڈ؟ نیچے گر گئے تھے، گراج میں گر گئے تھے۔ بائک لے کر وہ چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس آئی، پولیس نے سارا معاملات دیکھا، یہ جہاں وقوع ہوا تھا، پھر ان کے گھر گئے چلے، پھر واپس آئے، پھر وہ کہتے ہمیں لے کر آ گئے ادھر۔ اچھا، آپ دونوں بھائیوں کو لے کر ادھر آ گئے۔ اچھا جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام امجد علی۔
अच्छा, आप इनके बड़े भाई हैं इसके? हाँ जी, बड़ा तो भाई। इनके साथ नहीं आप रहते, नहीं, चुंगी मैं अमृतसर में रहते हैं? चुंगी अमृतसर में मेरी रहायश है, मैं 10 साल तो उधर रह रहा हूँ। अच्छा मैं इधर आया था 2-3 दिन पहले, इनके पैसे लेने थे इनसे, अपने माँ बाप से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हमशीरा के कब पता चला कि हमशीरा ने शादी की हुई है गौहर वो के गौर ने बताया हमें। साथ? ये अभी बताया गौहर हाँ, ने? जो इधर आया था ना गौर पकड़ी के, उसने बताया हमें कि मेरा निकाह है उसके साथ। अच्छा, आपको पता हो कि किस तरह से इनकी दोस्ती हुई? दोस्ती का तो मुझे नहीं पता, इधर आया था वो कहता आपकी हमशिरा से निकाह हुआ था, ऐसे बताया था अच्छा, उसने। आप क्या करते हैं? मैं जी अभी डाटा ऑपरेटर हूँ, इधर जॉब कर रहा हूँ ठोकर न्याज बैंक में। अच्छा, आपका इसमें क्यों कसूर है, आपको क्यों हथकड़ियाँ लगी हुई हैं? मेरा इसमें ये कसूर है कि मैं ना उसको समझाया है कि मैं आप ना इधर घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, मैंने इधर इसको समझाया है तो इन्होंने यही में मान लिया है कि मतलब कि मैं ऐसे कि मतलब मेरा गुनाह बना रहे हैं कि ये खुद भाई कहते हैं कि आपका कोई गुनाह नहीं है, आप उसे पकड़ा दो जिसने किया था। हम उसका नाम भी ले लिया आपके सामने, वो आ भी गया है, वो उसके बावजूद हमें इधर रखा हुआ है। सुनने वालों को यही कहूँगा कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला से यही दरख्वास्त करते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। और जो भी इसमें जो भी लड़ाई हुई है, मतलब जिस दोनों की तरफ जो फायरिंग हुई है, तो आप इंसाफ करें, हमारे साथ इंसाफ करें, आप इंसाफ करें हमारे साथ। तो आप क्या ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो अफाक क्यों तंग करता था, कोई उसके पता चला हो, कुछ उसने कहा हो हमशीरा को? अफाक तंग करता था, इसका ये तंग करता था, जब मेरी हमशीरा जाती थी उसे तंग करता था, अच्छा, बाहर खड़ा हो जाता था, म्यूज़िक लगा के खड़ा हो जाता था। समझाया है, इसको समझाया है काफ़ी, इनके घर वालों ने भी इसको समझाया, लेकिन ये फिर आकर म्यूज़िक लगा के खड़ा हो जाता था, मानता नहीं था किसी की बात, ये आइस भी करता था। अच्छा, तो कोई आपने पहले इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दी? जी, मैंने बैरिया हेडक्वार्टर में कंप्लेन की है, बैरिया हेडक्वार्टर। और 15 पे भी कॉल की थी या नहीं? जी, मैं 15 पे कॉल, जो वाक़या हुआ था, जब मैंने वाक़या हुआ था वो उठते साथ ही मैंने 15 पे कॉल की थी, बैरिया हेडक्वार्टर पे कॉल की थी। आप रिकॉर्ड निकाल लें, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, हमशीरा क्या करती है आपकी? भैया ने ना काफ़ी देर पहले, कुछ 2-4 साल पहले ना पार्लर का उसने काम किया था, मैंने पार्लर तैयार अपने हाथों से करवाया था उस दौरान। उससे बाद नहीं मुझे पता पार्लर उसने रखा है कि बेच दिया है। किस जगह पे उसने? ये सुनहरी बैंक है इधर, मस्जिद, बड़ी मस्जिद नहीं है उसके सामने, मतलब कि है सुनहरी बैंक, उसकी बैक साइड पे। तो वो बेच दिया पार्लर भी अब? अभी सेल कर दिया। कि मैं आपको उसने शादी के बारे में गौहर के तू साथ हमारे घर में क्या लेने गया था, तो उसने कहा कि मैं गया था कि मेरी वो वाइफ है, मैंने उससे निकाह किया, मैं तो ता गया था, अपनी इज्जत की खातिर गया था। अच्छा, आप नहीं समझते कि आपकी बहन भी बराबर की कसूरवार है? उसने गौहर को फ़ोन करके कहा था कि मुझे तंग करते हैं, तो गौहर उसने ही उकसाया उसको कत्ल के लिए? ज़ाहिर है ये भी कसूरवार है इसमें, क्योंकि उसने बुलाया उसको, क्योंकि उसने पहले तो शादी की हुई थी और आपको नहीं बताया, हाँ जी। और उसके बाद उसको फ़ोन भी किया और कत्ल हो गया सारा। उसमें क्या लगता है कि कसूरवार है कि नहीं? है फिलहाल तो है ना, हमें जो हमारे ज़हन में आता है कसूरवार है। जी, मेरे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना उमर दराज साहब मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं। राना साहब, ये केस किस तरह से शुरू हुआ था, क्या कहाँ से शुरू हुआ है, आपको इत्तला कैसे आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी पोस्टिंग हुई है 20 नवंबर को यहाँ, और मुझे सबसे पहला टास्क जो सौंपा गया कि वक़ार अहमद एडवोकेट हैं जिनका मर्डर हो गया, आपने इसके मुलजमान को ट्रेस करना है। तो ये 2 नामज़द थे, एक का नामालूम था, ये इनके हमसाए थे जो किराएदार थे, और वो घर छोड़कर भाग गए। तो जब मैंने मुलाज़ा मौका किया, मैंने इनके नंबर्स हासिल किए, तो ये लोग जो हैं वो अपनी अपनी लोकेशन यहाँ से तब्दील करके दीपालपुर के इलाके में चले गए, और जो दूसरा था वो फैसलाबाद के इलाके में चला गया। मैंने एसपी साहब से बात की, हमारे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन ईसा खान साहब ने मुझे लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, और मैंने इन मुलजमान को
बहुत ही जो एक्टिव थे, ये एक शातिर और पढ़ा लिखा आदमी है जिसने ये मर्डर किया है। इसका बेसिक ये जो अमजद और कुर्बान है, इनकी हमशीरा के साथ तल्लक था। ये मर्डर करने वाले लड़के गौहर का। तो जब गौहर दोनों लड़कों को पकड़ा है तो उन्होंने बताया कि मेन जो मुलज़म है वो गौहर है, तो गौहर को हमने असला समेत गिरफ्तार कर लिया। असला समेत गिरफ्तार। सर ये फरार कहाँ हो गया था उसको कत्ल करने? फैसलाबाद चला गया था। फैसलाबाद के बाद ये चीचा वतनी रहा है। चीचा वतनी के बाद ये इस्लामाबाद चला गया, और फिर जैसे ही ये लाहौर में पहुंचा है तो नारियाँ इलाका है, इसका घर है सिकंदरिया कॉलोनी। तो इसकी लोकेशन आई है तो हमने वो सिकंदरिया कॉलोनी सोडीवाल का इलाका है, कच्चा एरिया है, तो हमने वहाँ से इसको ट्रेस आउट किया है और गिरफ्तार किया है। अच्छा सर, वजह क्या थी इस कत्ल की? ये जो है लड़की है इरम, ये उसका फ्रेंड है। इसने उसके कहने पे, वो कहती है कि इनका कोई मर्डर होने वाले का कोई छोटा भाई था, वो डेक लगाता था कार में, वो डेक लगा के तंग करता था मोहल्लेदारों को। उसने इसको बुला के तो ये पूछने गया, आगे से इनकी गाली गलोच हुई है, तो ये अपनी छत से आके इसने टेरेस से फायर किए हैं, 2 मैगज़ीन खाली किए हैं और वकील साहब को सर पे फायर लगाया, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा सर, इस केस में मौक़िफ़ उनका ये है कि वकार जो उसका भाई था उसने नहीं बल्कि आफाक ने उसके साथ बदतमीज़ी की थी, छेड़छाड़ किया था, जबकि मारा इसमें आफाक गया है, वकार गया है। सर बात यह है कि वो जो आफाक लड़का था वो उस पर वो कह रहे हैं कि उसने तंग करता था। जब ये बंदा आया है गौहर, इसने आन के उनकी बेल दी है, बेल देख के तो आफाक के साथ उलझा है। आफाक के भाई बाहर आ गए हैं। जब इसको पता चला कि 2-3 भाई हैं तो ये भागा है, पीछे भाग के फायरिंग करता हुआ भागा है। उस फायरिंग की ज़िद में आके वो आफाक की बजाय ये वकार साहब को गोली लग गई है। अच्छा सर, इस केस के मुद्दई क्या कहते हैं कि यही बंदा कातिल था गौहर? 100% उन्होंने कहा कि ये गौहर ही कातिल था। अब इनकी शनाख्त परेड करवाएंगे, क्योंकि शनाख्त परेड का एक अमल होता है, उसके लिए हमने मुलज़म को हवाला जुडिशल भिजवा दिया है। इंशाल्लाह 100% मेरिट होगा, लेकिन उससे आला कत्ल भी तकरीबन रिकवर हो चुका है। अच्छा सर, लड़की के फ़ोन करने पे वो आया था वहाँ पे गौहर, तो क्या इसमें लड़की का कसूर नहीं, लड़की भी बराबर कसूरवार नहीं बनती? पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन थी, अमजद कुर्बान और एक कस नामालूम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया, क्योंकि मदई फरीक को पता नहीं था कि वजह क्या है। उनके बच्चे को पता था, उसने भी नहीं बताया होगा कि ये इस तरह आया है, झगड़ा हुआ है। उन लोगों ने लड़की को नामजद नहीं किया। अब दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है और इंशाअल्लाह उस लड़की को भी पूरी सज़ा दिलवाएंगे और इसको इस मुकदमे में अरेस्ट करेंगे। अच्छा सर, अमजद कुर्बान से जो हमारी बात हुई है तो वो यही कह रहे थे कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तो अगर उनका कसूर नहीं तो वो बाज़ाब हो सकते हैं? सर बात यह है कि ये मौका पर मौजूद हैं, अभी तक किसी बंदे ने भी इनकी बेगुनाही साबित नहीं की। ये लड़ाई में मौजूद हैं और कैसे मुमकिन है कि वो मौका पर मौजूद हों और लड़ाई में हिस्सा ना लें। उनके घर के पास वो लोग मौजूद हैं और वो अभी देखते हैं, ये इब्तदाई मराहल में है, वो हमारे पास रिमांड पर हैं, हम उनसे तफ्तीश कर रहे हैं, मौका पर से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और मौका के जो मुअज़्ज़िन हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। नाजायज़ ताल्लुकात का शाखसाना, एक औरत एक जान ले गई। नाजरीन, तमाम कहानी हम आपको बता चुके हैं। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।